West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee has taken her political and legal battle against the Election Commission directly to the Supreme Court. At the center of the storm is the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls, an exercise that has triggered a massive political confrontation ahead of crucial elections. The case will now be heard by a Supreme Court bench led by Chief Justice Suryakant along with Justices Jayamala Bagchi and Vipul Pancholi. The hearing is expected to decide whether the voter list revision exercise follows constitutional safeguards or crosses democratic boundaries. Mamta Banerjee has accused the Election Commission of targeting opposition-ruled states and undermining electoral fairness. She claims that nearly 58 lakh names have been removed from voter rolls in West Bengal without giving people a fair chance to defend their eligibility. According to her, this exercise risks disenfranchising millions of voters and damaging the democratic process. The Chief Minister has described elections as a festival of democracy and alleged that the removal of such a large number of names threatens the basic right to vote. The confrontation escalated earlier this week when Mamta Banerjee travelled to New Delhi to meet Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. The meeting ended abruptly after heated exchanges. Sources claimed that the discussion turned confrontational, while Mamta later alleged that she was humiliated during the interaction. She accused the Election Commission of arrogance and bias. She also questioned why similar revision exercises were not conducted in BJP-ruled states like Assam, while opposition-ruled states were being targeted. Mamta Banerjee further raised concerns about documentation requirements under the SIR exercise. She argued that demanding birth certificates of parents could be unrealistic for many citizens, especially those born decades ago when institutional medical records were rare. She also claimed that errors in the revision process have led to shocking discrepancies. According to her, some individuals have been declared dead in electoral rolls despite being alive. She even brought people she claims were wrongly removed from voter lists to demonstrate alleged irregularities. देखिए हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बांट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। AI का नाम पे शिवा खन्ना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का IT सेल का है। आपको करना चाहिए था तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको SIR का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको SIR करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया SIR, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया SIR, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु की किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया? 58 लाख को पहले निकाल दिया, और शिवा खन्ना ने AI का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उनको कुंडों ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का कोड़ा मिल गया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ।
अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर अंबानी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ है बोलते आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोगाल से मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेथ वोटर है, देखिए बोल बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेथ वोटर जिला है। और क्या है देखून। The Chief Minister has also made serious allegations linking the revision exercise to political interference. She accused the Election Commission of working under pressure from the ruling party at the centre. Mamta Banerjee has warned that such actions could influence election outcomes before polling even begins. She has positioned her legal challenge as a fight to protect democratic rights and voter participation. उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपको कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे। पहले 58 लोग को वोट दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के लिए हम अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन lakhs of people here in Delhi and I can pellet them in front of anybody else. अभी क्या किया हमारा DO is the authorized person as per statutory book of Election Commission RPF. उन्होंने क्या किया, बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर DO क्लियर करते हैं, ERO क्लियर करते हैं, BLO क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। हर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है, लैंड सर्टिफिकेट अलाउ है, माध्यमिक आधार कार्ड अलाउ है, लैंड कार्ड अलाउ है, फैमिली रजिस्टर्ड अलाउ है। बंगाल में कुछ अलाउ नहीं है। तो हमने आधार कार्ड किया, हेल्थ कार्ड किया, फैमिली रजिस्टर्ड कार्ड किया, रेशन कार्ड किया, क्या नहीं किया? कार्ड का माला बन गया। ट्रक लेके टैंक जो घर में गरीब लोग सब चीज लगता है, उसको लेके जाता है तो बोलता है नहीं, बोल दो नॉट फाउंडिंग एविडेंस। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट में, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा। और क्या क्या चाहिए, खाली अपना बेटी को लिए
दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो वो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। पर्दा का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करने पड़ेगा। आप ऐसा वापिस वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है, हाँ? मूड लेके बोला है, मिजाज से जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, दुष्व्यवहार किया। मैंने कहा है कि हम सॉरी कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इंजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He is a great liar. He is giving some briefing after our queries. All are dropped. All are lie, garbage of lies. हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। और झूठा बात कहते हैं, बोलता है तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए हमने किया। हम लोग किसको ये बोला था? आपको पता है इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था, हमने देखा एक बंगाल का आदमी का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक करने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते। बोलता आपने बीएलओ नहीं दिया, तो कौन दिया? आप क्यों 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल ने किया, बंगाल को टारगेट करने के लिए? आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस पे बैठता है और सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है, एईआरओ का नहीं है। और The Election Commission, however, maintains that voter list revision is a routine constitutional responsibility meant to eliminate duplication and ensure accurate electoral records. The Commission has not officially responded to several of Mamta Banerjee's allegations, but is expected to defend the exercise in court. The Supreme Court hearing will now play a critical role in determining whether the SIR process meets legal standards and safeguards voter rights. This battle goes beyond West Bengal politics. The verdict could set a national precedent on how electoral rolls are revised across India. It will also test the balance between administrative authority and democratic accountability. As the Supreme Court steps in, the case could reshape the rules governing India's election process and define how far institutions can go while updating voter records.